सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे आने वाला है वो टर्म क्या है कि आपको सबसे पहला टर्म आने वाला है कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Intrinsic semiconductor are pure semiconductor. It is free from every impurities. I mean pure silicon, pure germanium. मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर सिर्फ सिलिकॉन 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 ही है, सिलिकॉन की पूरी स्ट्रक्चर है। उसके अंदर कोई अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटोमेटिक कोई डिफेक्ट्स होगा जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, जो एक्सटर्नल नहीं है, तो वो सेमीकंडक्टर होगा। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन एंड होल, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल इक्वल अमाउंट में होंगे, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम होंगे। उसके अंदर जो 4 वैलेंस बैंड होंगे वो होंगे। एक क्रिस्टल एक पॉइंट डिफेक्ट्स होता है। उस पॉइंट डिफेक्ट्स में क्या होता है कि कभी कभी क्रिस्टल के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें एटम इटसेल्फ समटाइम्स मिसिंग हो सकता है। तो और समटाइम्स मिसिंग होने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है, तो उसकी वजह से कहीं पे होल या कहीं पे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा, बट वो इलेक्ट्रॉन एंड होल इक्वल अमाउंट होगा। तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नंबर ऑफ होल डेंसिटी विल बी इन इक्वल अमाउंट। यहाँ पे पहली चीज समझ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर आएंगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इट इज अ डॉप्ड सेमीकंडक्टर। Why impure? Because some substance, some atoms are added to increase its conductivity. So it is what? So it is a impure semiconductor. तो यहाँ पे ये impure semiconductor क्यों है, मैंने जैसे कि बताया उसके अंदर कुछ सब्सटेंस ऐड किए जाएंगे। That process adding of extra substance, extra atom to pure semiconductor to increase its conductivity, that process is doping, and the substance which are added is called dopant, are called dopant. And the substance or atoms are added, they are in ratio of ppm, that is the part per million. After doping, the pure semiconductor, that is the intrinsic semiconductor, becomes extrinsic semiconductor, that is the doped semiconductor, that is the impure semiconductor. And because there are two types of doping, in one type of doping, a n-type semiconductor is formed. In n-type means electron type, where electron is extra, where pentavalent atoms are added. Pentavalent, the electrons, the atoms which have 5 valence electrons are added, uh, where requirement is only 4 electrons. So due to one extra electrons, the electron density becomes the larger than the hole density. So in n-type semiconductor, electrons called majority carriers and hole becomes minority carriers. And opposite of this, there will be a p-type semiconductor, that is the hole type semiconductor, where the p-type semiconductor, they are the hole type semiconductor, where hole will be majority carriers, where trivalent, yes, trivalence, that is the atoms which have a 3 valence electrons are added to it, and there becomes a scarcity of electron, that is called hole. The formation of hole occurs, and in that semiconductor, in p-type semiconductor, hole becomes majority carriers and electron becomes minority carriers. All the things that we have said about the extrinsic, intrinsic, p-type semiconductor, n-type semiconductor, we will see all these cases through notes and even in NCRT books. Yes, देखिए, intrinsic semiconductor. Semiconductor in their pure form are called intrinsic semiconductor. Each atom is surrounded by four nearest neighbors. Every silicon and germanium atom tends to share one of its 4 valence electron with each of its 4 neighboring atoms and share one electron from each neighbor. As temperature increases, electron may become free due to availability of thermal energy. Thermal energy
एटम्स, एंड इसको लिखा है एटम्स प्योर से निकलेगा, एंड ड्रिफ्ट्स ए वैकेंसी विथ इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड होल। यहाँ पे होल का मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट जो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल के बारे में थोड़ा समझाया है। बट होगा क्या कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में एन आई इक्वल टू एन एच, एन ई इज व्हाट, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड एन एच इज होल डेंसिटी। एन ई का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और आप अलग से ये लिख लेना, होल का मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल डेंसिटी। यहाँ पे लिखा है द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इंडिपेंडेंटली एंड गिव्स राइज टू इलेक्ट्रॉन करंट। ई, यहाँ लिखा हुआ ई इलेक्ट्रॉन करंट, एंड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड होल मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव। वो तो है ही, ऐसे होंगे। तो यहाँ पे नेट करंट जो कहता है, इट इज ए समेशन ऑफ आई ई प्लस आई एच, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट का सम होगा। यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा छोटा सा है, आप बुक के अंदर देखेंगे इस दोनों डायग्राम में थोड़ा सा क्या क्या चीजें किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत छोटा सा 4444 आपको पीडीएफ दे देंगे, हम दे चुके हैं। इस 444 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन थर्मल यहाँ पे लिखा है, थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कहीं से यहाँ पे एक आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से चला गया यहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव भी हो सकता है, जो यहाँ पे बताया गया है फिगर में। तो इससे इलेक्ट्रॉन और होल का फॉर्मेशन होगा। बट जो भी होगा, तो यहाँ पे अपने आप है, टेम्परेचर की वजह से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन और होल में चेंजेज हुए हैं, ये बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। इसको और ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया गया है। मैं एक चीज आप लोगों को पीछे क्लास की चीजें को रिमाइंड करा रहा हूं, ध्यान से समझना और जवाब भी देना। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, पढ़ा है। लेकिन आपने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। ध्यान से सुनो, डिक्रीजेज। और ग्राफ भी इसका उसके रिस्पेक्ट में उल्टा है। क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डिक्रीजेज, उसमें ऐसी क्या बात है कि डिक्रीज हो जाती है, तो जवाब क्या होगा ये भी समझ लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इन कंडक्टर when temperature increases its resistivity decreases, while in semiconductor when temperature increases its resistivity decreases. Why? Because when temperature increases the number of charge carriers increases। यहीं पे क्योंकि थर्मल एजिटेटेड, यहाँ पे क्या लिखा, थर्मल एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन और होल कैन मूव। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल एनर्जी के कारण, टेम्परेचर के कारण बढ़ जाती है, और वो मूवमेंट करने लगती है, जिससे उसकी करंट बढ़ जाती है, तो कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है और रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल, अब यहाँ पे मैं डोपिंग जिसके बारे में मैं बार बार कर रहा था उसके ऊपर आ गया। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इंप्यूरिटीज इज एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर, conductivity is manifold increased manifold। such a semiconductor is called extrinsic और impurity semiconductor या impure semiconductor कह सकते हैं। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द डेलिब्रेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इंप्यूरिटीज टू इंक्रीज, ऊपर एरो लगा हुआ है, ये एरो इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। द इम्प्यूरिटी एटम्स विच आर एडेड आर कॉल्ड डोपेंट, जो ऐड किया जाता है डोपेंट होते हैं। शुड नॉट बी डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ इसके बारे में कंडीशन लिमिटेशन होती है ना, कई एक चीज ये कितने कंडीशन पे होना चाहिए, थोड़ा लिमिटेशन के बारे में बात लिखा है। शुड नॉट बी डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल लैटिस स्ट्रक्चर जो होती है उसको ये डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, एक कंडीशन है। एंड साइज ऑफ डोपेंट और सेमीकंडक्टर एटम शुड बी नियरली सेम, ये भी जरूरी चीजें हैं। ऐसा क्यों, मतलब मैं समझाता हूं। देखो, सिलिकॉन के आप जानते हैं, आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं, तो सिलिकॉन की एक अपनी साइज है। और थ्री वाला सिलिकॉन की कितनी है वैलेंसी, टोटल एटॉमिक नंबर आपको याद होगा, सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर 14 है। तो 14 है, और इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि मैंने अभी बात किया। तो मैंने अभी डोपिंग के बारे में बात किया कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको या तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला चाहिए या 3 वाला चाहिए। लेकिन मैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले के बारे में, बोरोन का एटॉमिक नंबर आप लोग को याद होगा और फ्लोरीन का याद होगा, बोरोन और फ्लोरीन का याद है ना।
मुझे लग रहा है कि बोरोन की एटॉमिक नंबर 5 है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। तो फ्लोरीन को छोड़ दो। तो फ्लोरीन का 9। फ्लोरीन का 9 होता है ना, तो 5 to 7, 7 किसका है, 7 नाइट्रोजन। लिथियम का है, किसका, 7 एटॉमिक नंबर किसका है। सर चलो जो भी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है। तो मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, तो यहाँ बोरोन जो मैंने 5 की बात करा, बोरोन 5 की बात करा और नाइट्रोजन की बात करा, तो कहता है कि देखो नाइट्रोजन या बोरोन उसके साथ उतना सुटेबल नहीं है क्योंकि उसकी साइज का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। ऐसे तो 5 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, लेकिन साइज वही होना चाहिए जो सिलिकॉन के आसपास हो। इसीलिए मैंने सिलिकॉन से जस्ट ऊपर, आपको याद है मैंने बात करा था अभी, सिलिकॉन से जस्ट ऊपर के बारे में बात किया था, तो मैंने बात किया था फास्फोरस को, और जस्ट नीचे की बात किया था एल्युमिनियम की साइड आसपास है। तो ज्यादा बड़ी साइज यहाँ पे नहीं चलेगी, वही लिखा है ना यहाँ पे, द साइज ऑफ डोपेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर शुड बी नियरली सेम। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। यस, तो और आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर अब आ जाते हैं। ऐसे तो मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैंने आपको पहले समझाया है, फिर भी थोड़ा और डिटेल देखिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर देखिए, व्हेन ए पेंटावैलेंट एटम ऑफ ऑक्युपाइज द पोजीशन ऑफ नियरेस्ट, यहाँ कुछ होना चाहिए, पोजीशन ऑफ एटम इन क्रिस्टल लेसिस द सिलिकॉन, 4 of its electron bond with the 4 neighboring electron। जानते हैं एटम्स which have a fifth remains weakly bond to पेरेंट एटम। कहता है कि अगर आपने पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट का मतलब जानते हैं जिसकी वैलेंसी 5 होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वाला होगा, तो 4 तो आसपास में कंबाइन हो जाएगा, बट 5वां इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेगी पेरेंट एटम के साथ कनेक्टेड। शो शो दैट इज रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो। यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और एट रूम टेम्परेचर इट इज फ्री टू मूव। Thus, a pentavalent dopant donates one extra electron for conduction and hence to known as donor impurities। इसका कहना है कि 4 इलेक्ट्रॉन की जगह आपने 5 इलेक्ट्रॉन वाला लगा दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कंबाइन कर लिया नेबरिंग एटम्स के साथ, नेबरिंग, और 1 इलेक्ट्रॉन आपको एज ए डोनर कंडक्शन के लिए वो दे सकता है, जिससे कंडक्शन पॉसिबल होगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन ए डॉप्ड सेमी कंडक्टर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन Ne इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कंडक्टेड बाय डोनर, जो कि पेंटावैलेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है। दिस जनरेटेड इंट्रिंसिकली while total holes NH is only due to holes। कहता है होल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ा है, ये चीजें बता रहा है। तो यहाँ पे तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, उल्टा इसकी वजह से होल जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, होल रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो गया और माइनॉरिटी कैरियर्स होल हो गया। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं एनई इज मच ग्रेटर देन एनएच, एनई इज मच ग्रेटर देन एनएच, आई मीन व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल हो जाएगा। और पीछे अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने बनाया था, तो ये स्ट्रक्चर जो राइट साइड में यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तो था, बट इस स्ट्रक्चर को थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 4 4 4 4 4 4 4 है, और यहाँ पे एक देखिए कि बीच में एक 5 इलेक्ट्रॉन वाला चीज आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पे बता रखा है, 4 तो बाउंड है, तो अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज यूज फॉर कंडक्शन। अब इसके बाद एक और पॉइंट है कि मैं इसके लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर बात करता हूं, जो मैं ब्लू कलर से जिसके बारे में हम समझाता हूं। यहाँ पे ऊपर में कंडक्शन बैंड, नीचे में वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाना है, तो पहले एनर्जी गैप ज्यादा बड़ा था। अब इस डॉपिंग की करने से कुछ एनर्जी गैप की वैल्यू कमी आई है और नीचे से एक लाइन खींच गई है, तो एनर्जी गैप पहले से कम हो गया है, और एनर्जी गैप 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले से कम हो गया है। तो एनर्जी गैप तो पता है कि एनर्जी गैप को ही क्रॉस करना होता है कंडक्शन में, कंडक्टर के लिए। तो एनर्जी गैप तो यहाँ पे कम हो गया है, अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रॉन कैन इजिली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो कंडक्शन बिकम्स
पॉसिबल, कंडक्शन बिकम्स पॉसिबल, पहले के रिस्पेक्ट में यहाँ पॉसिबल है। तो मैंने कहा भी था कि यही चीज यहाँ पे करना भी है। फिर हम अगला टॉपिक आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर। दिस इज ऑब्टेन व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डॉक्ड विथ ए ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटीज। ट्राईवैलेंट, पहले पेंटावैलेंट था, अब ट्राईवैलेंट, एक कम, जैसे एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम आप लगा सकते हैं। इट इज द डोपेंट एटम हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज लेस देन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बिल्कुल सही बात है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, उससे एक कम 3 इलेक्ट्रॉन वाली चीज यहाँ पे आ गई। This atom can form covalent bond with 3 neighboring silicon atoms, but does not have fourth electron, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। रिक्वायरमेंट 4 की थी, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। शो द फोर्थ बॉन्ड कंटेन्स ए होल। आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल, तो यहाँ पे होल का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम गया। एंड इलेक्ट्रॉन इन द नेबरिंग बॉन्ड नेबरहुड, क्या लिखा है, नेबरहुड में जंप टू फिल दिस होल, लिविंग ए होल एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन। सही बात है, कह रहा है कि अगर आपने एक होल छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन की जगह छोड़ दिया, और तो आसपास में कोई इलेक्ट्रॉन जो अपने सही जगह पे था, वो अपनी जगह से जंप करके इस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए आ जाएगा। तो और वहां पे एक नया होल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से उस फिर होल आर मेजॉरिटी कैरियर्स, यहां तो हो ही जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर। तो यहाँ पे होल का संख्या बढ़ जाएगा क्योंकि हमने ट्राईवैलेंट के साथ किया है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला किया है। तो यहाँ पे NH इज मच ग्रेटर देन Ne, मतलब NH मतलब होल डेंसिटी, होल इज मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन इज माइनॉरिटी कैरियर्स, वो भी आपने लिखेंगे यहाँ पे। और जो पहले की तरह आपने देखा है, वहां पे देखिए कि सभी यहाँ 4 4 4 4 है, और यहाँ पे देखिए कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला चीज यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे एक होल दिख रहा है, आपको छोटा सा होल दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया है, वो भी दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां से जंप कर गया। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, तो पहले वाले होल को तो भर देगा, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे एक नया होल बना देगा, और फिर उसको भरने के लिए दूसरा एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जंप करेगा, तो फिर एक नया होल बनेगा। इस तरीके से एक नए होल आगे मूव करता चला जाएगा। तो हम बोलते थे, पहले बोलते थे कि होल मूव, तो लगता था ये होल मूव क्या कर सकता है, वैकेंसी कैसे मूव करेगा। वैकेंसी ही तो हुआ, एक वैकेंसी को दूसरा भर दिया, तो वहां एक नया वैकेंसी बन गया, फिर आगे वैकेंसी बढ़ गया। तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती जाएगी। फिर आप इसमें आइए दोबारा, इधर में देखिए इसको, ये तो हमने राइट साइड का डायग्राम बना दिया। अब लेफ्ट साइड का डायग्राम में देखिए, यहाँ अगेन बैलेंस बैंड है पहले की तरह, ऊपर में कंडक्शन बैंड है, बीच में एनर्जी गैप आपको दिख रहा है, तो एनर्जी गैप दिख रहा है। और यहाँ पे जो नीचे से यहाँ पे एनर्जी गैप कम हो रहा है, वहां पे ऊपर से कम हुआ था, यहाँ पे नीचे से कम हुआ है, तो एनर्जी गैप कम हो गया, तो ये चीजें यहाँ पे होगी। तो इस टाइप से यहाँ पे एनर्जी गैप कम गया, तो कंडक्शन धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला है एक नया, जो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन में होता है, Ne/NH = Ni²। कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसा यूज हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ तक ये सभी चीजें क्लियर है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन के ऊपर आगे चीजें बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ, देखिए देखिए टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया अभी, मुझे पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन टॉपिक लेना है। मैं वर्ड को पूरा बताते जाता हूँ, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। पहले पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, मैं ऑलरेडी अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका हूं। यहाँ पे क्या क्या है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मुझे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे कहा है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके वेफर, वेफर जो वर्ड है आपको पता है, थीन चीज को वेफर बोलते हैं। जैसे पोटैटो का वेफर होता है ना, पोटैटो वेफर, तो वेफर मतलब थीन चीज। तो पी टाइप का थीन चीज और एन टाइप का थीन चीज को, दोनों को ज्वाइंट करते हैं। लिखो, बाय एडिंग प्रिसाइजली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज। पेंटावैलेंट का मतलब एन टाइप हो जाएगा, पार्ट ऑफ पीएसआई, पीएसआई मतलब पी टाइप का सिलिकॉन वेपर, दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनएसआई। देयर आर सेवरल प्रोसेस बाय व्हिच सेमीकंडक्टर कैन बी फॉर्म। सेवरल प्रोसेस, एक साइड में पी रीजन होगा, दूसरे साइड में एन रीजन होगा। मेटलर्जिकल जंक्शन से भी कर सकते हैं, मतलब एक साइड में पी टाइप, दूसरे साइड में एन टाइप। इसके अंदर टू डिफरेंट प्रोसेस होना है, टू डिफरेंट प्रोसेस, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट।
ये डिफ्यूजन ड्रिफ्ट क्या है आगे समझ में आएगा, बट ये प्रोसेस होना है, एक साइड में पी टाइप होगा, दूसरी साइड में एन टाइप होगा। वी नो एन टाइप सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स है, मुझे पता है, इज मोर कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ होल। पहले कितनी बार बता चुके, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, मतलब होल टाइप, मतलब होल मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होल माइनॉरिटी, ये पहले से बता चुके हैं। यहां पे है, अब यहां पे कुछ वर्ड आएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ पी एन साइड। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब वही है कि जो वैल्यू है, जैसे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब मैं आपको इन चीजों को अलग तरीके से समझाता हूं, जो यहां से इस और इस पैराग्राफ में होगा। ऐसे मैंने तो बोला था आपको ये वाला ग्राफ ब्लॉक बनाने के लिए, मेरे साइड में आपको समझाने के लिए एक और ब्लॉक में बनाता हूं। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बना दिया आपके सामने। यस, ये मैंने ब्लॉक बना दिया। इस ब्लॉक के मैंने बीचों बीच एक लाइन पतला सा खींचते हैं। यस, और ये देखिए ऊपर देख दिया मैंने, पी इधर लिख दिया एन, समझना है। देखो, पी टाइप का मतलब इसके अंदर होल ज्यादा है। होल समझने के लिए सिंपल सिंपल से समझो कि पॉजिटिव यहाँ पे ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है, मेजोरिटी है, मेजोरिटी है। इसका ये मतलब कि नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो मैं एक दो यहाँ पे माइनस माइनस भी समझा देता हूँ। बुक में इसको सिंबल अलग भी हो सकता है, बट आप यही समझो। और दूसरे साइड में एन टाइप है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस माइनस ज्यादा है, बेसिक समझना है। अब ज्यादा है, आपको एक चीज पहले से पता होना चाहिए कि एक दो होल भी बना दो, पॉजिटिव भी बना दो, ज्यादा निगेटिव बनाओ। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होती है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड पी टाइप से एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ई हुआ, पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि आपको मालूम है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एफ इक्वल टू क्यू ई से एक फोर्स लगता है, ये मालूम है। और फोर्स के कारण ये क्यू चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, और अगर निगेटिव है तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव जो है, ये होल है, वो इधर की तरफ मूव करेगा, होल इधर की तरफ मूव करेगा। एरो देखो, मैं होल की तरफ मूव कर रहे हैं, होल मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव करेगा, मैं इसको रेड कलर से लेता हूं, इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव करेगा। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। तो ये हुआ मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स में दोबारा रिपीट करता हूं, होल ऑफ पी साइड मूव्स टुवर्ड्स एन साइड, इलेक्ट्रॉन ऑफ एन साइड मूव्स टुवर्ड्स पी साइड, एंड this is called diffusion. This is called what? This is called here diffusion. This is called diffusion, यहां समझना है, this is called diffusion। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफ्यूजन, होल डिफ्यूजन लिखा हुआ है एरो की डायरेक्शन में, और होल डिफ्यूजन, और ऊपर में देखिए इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कहलाता है ये चीज होगा। अब इसको, होल किधर जा रहा है, यस, होल किधर जा रहा है आपको समझना है, होल किधर जा रहा है। तो आप देखेंगे तो होल किधर जा रहा है, तो होल जिधर जा रहा है ना, उधर का माइनॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उधर का माइनॉरिटी है। तो इस बुक में कभी कभी माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन भी लिख देगा, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन वर्ड वहां पे लिख देगा, तो डिफ्यूजन करंट होगा। एक चीज और बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला गया और होल इधर से इधर चला गया, तो एक दूसरे साइड में शिफ्टिंग की वजह से दूसरे साइड में होल बढ़ने लगेगा और इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा। इससे क्या होगा कि एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पहले का अपोजिट होगा, और वो जो डिफ्यूजन करंट है, जो पहले वाला होल मतलब माइनॉरिटी कैरियर है, उसको वो पुश आउट करेगा। पुश आउट क्या करेगा, मतलब इधर के होल को इधर आने देगा और इधर के इलेक्ट्रॉन को उल्टा जाने देगा, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट और होल ड्रिफ्ट। तो ये जिसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे, दिस इज द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी इज डिफ्यूजन करंट एंड मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी इज ड्रिफ्ट करंट। तो शुरू में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट करंट कम होगा, धीरे धीरे दोनों इक्वल हो जाएगा, और उसके बाद करंट स्टॉप हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड
तो वहां पे करंट स्टॉप हो जाएगा और एक सर्टेन पोटेंशियल भी जनरेट होगा जिसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। और ये सब बीच के पोर्शन में एक रीजन होगा जिसको हम डिप्लेशन रीजन कहेंगे। और ये सभी फिनोमेना एट द जंक्शन होगा, एट द जंक्शन होगा। और ये तभी जो आप